Hello students, in last lecture we discussed the superposition theorem where we see that the superposition theorem is applied in a linear network. Basically it is based on the linearity, clear, and it is used to find the response in a particular resistance or in the branch, clear. Always remember, this theorem is applicable only when we having the two or more than two energy sources. Clear? It may be two voltage sources, it may be two current sources, it may be one voltage source, one current source, or many more. Clear? In this we consider one source at a time and find the response on a particular resistance, and this process is repeated for the every energy sources. Clear? In which we see that when we consider a voltage source or any source, the other sources are either it is open circuited or it is short circuited. Always remember, the voltage source is short circuited because the internal resistance is 0, and the current sources are open circuited because its internal resistance is infinite. Clear? In last lecture we discussed a problem having the two voltage sources. Clear? Now we will start with small problems or the easier problem, then we will go to the tougher than tougher. You will see this is the problem 1. Clear? This problem 1, it is a very important problem and very easy problem which is asked in the AKTU, it is also asked in the GATE, and it is also asked in the IES, that is the Indian Engineering Services. Clear? You will see this is the network. Clear? And we have to find the current I using the superposition theorem. Here we are using the voltage source and current source. Clear? That means this network having the two sources. Clear? First of all, we are considering the 10 volt source. Clear? You will see this is the 10 volt source. Clear? And what is this is the current source. That means this current source is open circuited. Clear? As we have to find the I which is in between A and B. तो हमने क्या करा, यहाँ पर A और B को मार्क कर दिया. Clear? Now you will see this is the 10 volt. Clear? This is the 1 ohm, and the 4 and 1 ohm both are connected in series. That means what is the resistance? That is the 4 plus 1, that is equal to the 5 ohm. Clear? This is the 4 plus 1, that is equal to 5. When 1 and 5 are connected in parallel. Clear? And you will see here we are not connecting in parallel. Simply you will see this is the 10 volt. Clear? It is the branch connected across the 10 volt, and this is the branch, it is also connected in parallel to the 10 volt. यानी कि 1 ohm 10 volt के पैरेलल लगा हुआ है, और ये 4 plus 1 जो 5 ohm का रेजिस्टेंस है ये भी 10 volt के पैरेलल में लगा हुआ है. अब हमें क्या निकालना है? We have to find the I. तो हमने क्या करा, ये A और B, सपोज यहाँ पर करंट कितना है I1, तो what is the I1? That is equal to the 10 upon 5, that is equal to the 2 ampere. Clear? Now we will consider the 10 ampere source. Clear? When we will consider this 10 ampere source, you will see this 10 volt source, the voltage source, it is short circuited. हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर? It is short circuited. अब you will see कि when these terminals are short circuited, तो इसके पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे. क्लियर? यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट. अब ये जो 10 एम्पियर करंट है ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो I2 और एक ये वाली करंट. अब हमने केवल I2 लिया बिकॉज वी हैव टू फाइंड द करंट इन 4 ohm. क्लियर? नाउ वी विल अप्लाई द करंट डिवीजन रूल. देखिए ये 10 एम्पियर करंट है, ये दो पैरेलल पाथ हैं, इसमें करंट कैसे होगी? डिवाइड होगी. तो क्या रूल है?
I2 that is equal to the total current 10 into resistance of the other branch. अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 1 अपॉन सम ऑफ द रेजिस्टेंस 1 plus 4 that is equal to the 2 एम्पियर. क्लियर. अब आपने देखा कि जब हमने पहला केस लिया था 10 वोल्ट सोर्स, तो जो I1 था वो A to B था. क्लियर. और I2 कितना था B to A. क्लियर. That means as I1 and I2 are in opposite direction, then what is the I? That will be equal to the I1 minus I2. Clear? तो I1 कितना था 2 एम्पियर, I2 कितना है 2 एम्पियर, then 2 minus 2 that is equal to the 0 एम्पियर. I2 minus 2 that is equal to the 0 ampere. Clear? Now we will see the next problem. Now we will discuss the another problem 2. Here we are using the two voltage sources, 6 volt and 20 volt. This is the 2 ohm, this is the 5 ohm, and we have to find the current I. Clear? Now as we have to find the current I, that means mark the A and mark the B. That means this 2 ohm it is the load resistance. क्लियर है. तो यहां पर हमने क्या करा A और B मार्क कर लिया. क्लियर. सबसे पहले हमने क्या कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग द 6 वोल्ट सोर्स. क्लियर. व्हेन वी आर कंसीडरिंग द 6 वोल्ट सोर्स, दैट मींस दिस 20 वोल्ट सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड. यानी कि जो 20 वोल्ट वाला सोर्स है ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. अब देखिए जब ये शॉर्ट सर्किट किया तो इसके पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे. यानी कि ये भी जो है रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, यानी कि ये भी पूरा का पूरा ये शॉर्ट सर्किट आ जाएगा. यानी कि करंट आपकी इस तरीके से फ्लो करेगी. क्लियर. सपोज दिस करंट इज I1. क्लियर. देन व्हाट विल हैपन, दिस I1 दैट इज द 6 और रेजिस्टेंस कितना है 2. तो I1 that is equal to the 6 upon 2 that is equal to the 3 ampere. Clear? Now we have to consider the 20 volt source. जब 20 volt source को consider करेंगे तो क्या होगा, ये जो 6 volt वाला source है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो गया. ये क्या था, ये A है और ये B है और यहाँ पर करंट कितना है I2. क्लियर. अब देखिए when it is short circuited, this is the I2. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ब्रांचेस हैं. यहाँ पर कितनी ब्रांचेस हैं, ये दो ब्रांच हैं. पैरेलल में किसके लगे हुए हैं 20 वोल्ट. क्लियर. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द I2, that is equal to the 20 upon 2 that is equal to the 10 ampere. Clear. We have to find the I, the current which is flowing from A to B. Clear. I1 A to B or I2 B to A. That means what is the I, that is equal to the I1 minus I2, that is the 3 minus 10 that is equal to the minus 7 ampere. Clear. When we say the I that is equal to the minus 7 ampere, यानी कि साइन कैसा आ रहा है, minus 7 ampere आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, the I that is equal to the 7 ampere from B to A. Clear. I is equal to 7 ampere from B to A. Clear. अब देखिए इन दोनों प्रॉब्लम को जो है हमने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी. ये AKTU में भी आई हुई है, गेट में भी आई हुई है और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आई हुई है. नाउ वी विल सॉल्व प्रॉब्लम 3. ये जो प्रॉब्लम 3 है इसमें हमें क्या करना है, ये I1, I2 और I3 निकालना है. ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक स्टार कनेक्शन है और यहाँ पर भी एक स्टार कनेक्शन है और ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा होगा. क्लियर. लेकिन अगर हम जब सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यू विल सी हाउ इट इज इजियर, कितना आसान हो जाएगा. देखिए यहाँ पर कितने सोर्स हैं, एक 20 वोल्ट है, एक 30 वोल्ट है और एक 10 वोल्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसीडरिंग द
20 वोल्ट सोर्स। हमने क्या करा, 20 वोल्ट सोर्स को कंसीडर किया, तो क्या होगा, ये जो 30 वोल्ट है और ये जो 10 वोल्ट है, ये क्या हो जाएंगे, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो यहां पर ये भी शॉर्ट सर्किट हुआ और ये भी शॉर्ट सर्किट हुआ। अब देखिए ये जो 20 वोल्ट सोर्स है, ये कितनी करंट डिलीवर कर रहा है, I1 डैश। क्लियर। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो I1 डैश करंट ये कितनी है। क्लियर। अब देखो आप कि 10 और 10 बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 10 into 10 upon 10 plus 10, that is equal to the 5 ohm. और 5 और 10 are connected in series, that means the R equivalent, that is the 5 plus 10, that is equal to the 15 ohm. Clear. When this is the 15 ohm, then what is the I1 dash, I1 dash. Clear. This I1 dash, that is equal to the 20 upon, और रेजिस्टेंस कितना निकाला था, 15, तो 20 upon 15, that is equal to the 4/3, 4/3, 5 4 the 5 3 the, that is the 4/3 ampere. Clear. Now this I1 dash is divided into the two part, and these are two equal resistance. ये भी 10 ohm है, ये भी 10 ohm है, यानी कि ये जो करंट है अब ये 4/3 का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/3 का आधा हो जाएगा, 2/3 एम्पियर, और I3 डैश that is equal to the 2/3 ampere. Clear. Now we will consider this 30 वोल्ट सोर्स। अब हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, 30 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करेंगे। जब हम 30 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा बेटा, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि 20 वोल्ट को भी हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये भी शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पर जो 10 वोल्ट का था ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि ये भी शॉर्ट सर्किट है। और यहाँ पर कितना सोर्स लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 30 वोल्ट का। कितने का लगा हुआ है, 30 वोल्ट का। क्लियर। अब ध्यान से देखें, व्हाट इज दिस, दिस इज द 10 ओम। क्लियर। और यहां पर भी ये कितना है, ये भी हमारे पास 10 ओम है। क्लियर। और यहां पर क्या है, ये भी 10 ओम। क्लियर। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। क्लियर। एंड इट विल बी लाइक दिस। क्लियर। अब 30 वोल्ट है, यानी कि ये जो करंट है ये कितनी हो गई, यहां पर कितना लिया था हमने, I1 डैश, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये जो करंट है हमारे पास, दिस इज द I2 डैश। कितना आ जाएगा, I2 डबल डैश। पहले हमने क्या लिया था यहाँ पर, I2 डैश, अब हमने क्या ले लिया, I2 डबल डैश। और ये I2 डबल डैश ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, किस किस में, एक तो ले लिया हमने I1 डबल डैश, और यहां पर कितना हो जाएगा, दैट विल बी I3 डबल डैश। क्लियर। तो I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, I3 डबल डैश। क्लियर है। अब देखिए ये 10 ओम और ये 10 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक ब्रांच तो ये आ रही है यहां से और एक ब्रांच ये पैरेलल है, तो 10 और 10 कितना हुआ, 5। क्लियर। और 5 और 10 कितना हुआ, 15। यानी कि अगर मैं इसको कहूं कि ये जो I2 डबल डैश है, I2 डबल डैश ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द 30 अपॉन 15, दैट इज इक्वल टू द 2 एम्पियर। अब देखिए ये जो I2 डबल डैश है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, किसमें, I1 डबल डैश और I3 डबल डैश। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कैसे हैं, इक्वल, यानी कि जो I1 डबल डैश है ये भी कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, और I3 डबल डैश दैट इज इक्वल टू द 1 एम्पियर। क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या कर लिया, एक तो 20 वोल्ट सोर्स ले लिया, फिर हमने किसको कंसीडर किया था, 30 वोल्ट को। अब हम किसको कंसीडर करेंगे, अब कंसीडर करेंगे हम 10 वोल्ट सोर्स को। क्लियर। अब देखिए 20 वोल्ट शॉर्ट सर्किटेड। क्लियर। यहां पर क्या है, ये 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। कितने का लगा हुआ है, 10 वोल्ट का। दिस इज ऑफ 10 वोल्ट। क्लियर। और ये क्या है भाई, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, दिस इज द 10 ओम।
क्लियर? यहां पर कितना है ये भी 10 ओम है और ये भी कितना है बच्चों, ये भी 10 ओम है। क्लियर? ये कनेक्टेड है इस तरीके से, क्लियर? और इसी तरीके से ये यहां पर कनेक्टेड है। अब ध्यान से देखिए, फिर वही हो रहा है, ये 10 ओम ब्रांच और ये 10 ओम ब्रांच दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो कितना हुआ 10 और 10 5, 5 और 10 कितना हुआ 15 हो गया, और यहां पर कितना है 10। क्लियर? तो यानी कि ये जो करंट है हमारे पास, इसको हमने क्या नाम दे दिया, I3 ट्रिपल डैश। क्या दे दिया, I3 ट्रिपल डैश। तो I3 ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा, I3 ट्रिपल डैश दैट इज इक्वल टू द 10 अपॉन 15 यानी कि 2 अपॉन 3 एम्पियर। क्लियर? अब ये जो I3 ट्रिपल डैश है ये यहां पर जाके दो पार्ट में डिवाइड हुई। ये ध्यान रखना है कि करंट का डिवीजन किस तरीके से चल रहा है। यहां से करंट I3 डैश ट्रिपल डैश गई और यहां पर डिवाइड हो गई। ये कितना है I1 ट्रिपल डैश, ये कितना है I2 ट्रिपल डैश। क्लियर? तो I1 ट्रिपल डैश दैट इज इक्वल टू द 2/3/2 यानी कि 1/3 एम्पियर, और I2 ट्रिपल डैश ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/3 एम्पियर। क्लियर? अब देखिए, जैसे हमें I1 निकालना है, क्या निकालना है I1। अब देखो I1 डैश किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से। क्लियर है? ये I1 डैश है। क्लियर? और I1 डबल डैश किधर से जा रहा है, ये I1 डबल डैश है। क्लियर? और ये क्या था बच्चों, दिस इज द I3 ट्रिपल डैश, I1 ट्रिपल डैश। अब I1 डबल डैश इधर है, I1 ट्रिपल डैश इधर है और I1 डैश इस तरफ है। क्लियर? देन व्हाट इज द I1? I1 दैट इज इक्वल टू द I1 डैश माइनस, ये भी रिवर्स डायरेक्शन है, यहां पर भी रिवर्स डायरेक्शन है, तो माइनस I1 डबल डैश माइनस I1 ट्रिपल डैश। I1 की वैल्यू कितनी, I1 डैश कितना निकाला था आपने, व्हाट इज द I1 डैश, I1 डैश I3 डैश, ये I1 डैश कितना था, बोलिए कितना था बेटे, I1 डैश दैट इज इक्वल टू द 4/3। तो 4/3 माइनस I1 डबल डैश, I1 डबल डैश दैट इज द 1 एम्पियर, तो माइनस 1, और ये भी सेम डायरेक्शन है, तो माइनस 1/3। क्लियर? तो दैट इज इक्वल टू द 4/3 माइनस 4/3 दैट इज इक्वल टू द 0 एम्पियर। Clear? Similarly, you can calculate the value of the I2 and I3. Clear? I2 direction this side, this is same direction and it is in opposite direction. Clear? Now you can find as we calculate the I1. Clear? Now you can find the I2 and I3. Start. Now we will solve problem number 4. Clear? Here we have to find the current in each resistance. Clear? This is the 5 ohm. Clear? This is 5 ohm. This is the 10 ohm. Here we are using a current source of 2 ampere. Here we are using the voltage source of 10 volt. Clear? First of all we are considering the 2 ampere source. Clear? Then अब हमने क्या करा, 2 एम्पियर सोर्स को कंसीडर किया। क्लियर? अब एक चीज और देखिए, यहां पर क्या है, ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, तो हमने क्या लिख दिया 5 ओम x और 5 ओम y। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से 5 ओम को लिया। तो हमने क्या ले लिया 5 ओम x और 5 ओम y। क्लियर? ये 2 एम्पियर है। यहां पर देखिए ये 5 ओम, यहां पर भी 5 ओम है, 5 ओम। क्लियर? ये x है और ये y है। यहां पर सोर्स कितना लगा हुआ है 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का। क्लियर? एंड दिस इज द 10 ओम, दिस इज द
10 ओम, और यहां पर जो वोल्टेज सोर्स था, ये वोल्टेज सोर्स लगा है, इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। क्लियर? सपोज this 2 ampere current is divided into the two part. This is the I1 and this is the I2, and what is this? This is the I3. Clear? अब देखिए, जब मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। क्लियर? जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो I3 is equal to कितना हुआ, 0। क्लियर? And this 2 ampere current is divided into the two equal part because the resistance are equal. Clear? अगर ये रेजिस्टेंस अलग अलग होते तो हम क्या करते, इस पे करंट डिवीजन रूल लगाते। यहां पर भी लगाया तो हमने करंट डिवीजन रूल ही है। कैसे, देख लीजिए कि I1 that is equal to the resistance of the other branch, तो that is equal to 2 into 5 upon 5 plus 5, that is the 2 into 5 upon 10, that is equal to the 1 ampere. Clear? तो I1 that is equal to the, कितनी वैल्यू आ रही है, 1 एम्पियर, और I2 की भी जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर है। क्लियर? नाउ वी विल कंसीडर द 10 वोल्ट सोर्स। जब हम 10 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करेंगे, देखिए ये 5 ओम है, ये भी कितना है, यहां पर भी ये 5 ओम है। क्लियर? यहां पर ये करंट सोर्स लगा हुआ था कितने का, 2 एम्पियर का। जब 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा था तो हमने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। क्लियर? और यहां पर ये क्या है, ये है 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस, और किसके अक्रॉस लगा हुआ है, इट इज ऑफ 10 वोल्ट। क्लियर? अब देखिए ये तो ओपन सर्किट हो गया, तो 5 और 5 कितना है, 10, और ये भी 10 है, यानी कि यहां पर जो करंट है इसको मैं क्या लूंगा, सपोज दिस इज द I4। ठीक है, तो I4 इधर जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, I5, और ये कितना होगा, दैट इज द I6। अब देखिए 10 upon 10 दैट इज इक्वल टू द 1 एम्पियर, और I4 5 और 5 10, ये भी 1 एम्पियर है, और ये दोनों सीरीज में, तो I4 और I5 बराबर होंगे, तो I4 1 एम्पियर और I5 इट इज ऑल्सो 1 एम्पियर। क्लियर? अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है करंट इन 5 ओम X। क्लियर? अब 5 ओम X में देखिए ये था I1। क्लियर? दिस इज द I1। अब I ये X है और ये Y है, तो यहां पर 5 ओम X में क्या हो रहा है, ये जो करंट है ये ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि I1 के क्या है, अपोजिट। क्लियर? तो दैट विल बी I1 minus I4 that is equal to 1 minus 1 that is equal to the 0 एम्पियर। क्लियर? इसी तरीके से करंट इन 5 ओम Y। क्लियर? व्हाट इज द 5 ओम Y? यहां पर करंट कितना है, I2 ऊपर से नीचे, यहां पर I5 ऊपर से नीचे, यानी कि डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो दैट इज द I5 दैट इज इक्वल टू द, कितना आ जाएगा, बोलिए, दैट इज द I2 प्लस I5 दैट इज द 1 plus 1 दैट इज इक्वल टू द 2 एम्पियर। क्लियर? नाउ द करंट इन 10 ओम, करंट इन 10 ओम। क्लियर? 10 ओम में करंट कितना लिया था पहले सोर्स के साथ, I3। क्लियर? और यहां पर कितना है, I6। जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो I3 की वैल्यू कितनी थी, 0। क्लियर? और I6 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 1 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू द 1 एम्पियर। क्लियर है? तो ये हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल था, आपने देखा कि एक करंट सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स, देखने में लग रहा था कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन कितना आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी जो है ये आ सकता है। क्लियर है? अब देखिए आज हमने कितनी प्रॉब्लम करी थी, 4 प्रॉब्लम सुपरपोजिशन थ्योरम की हमने सॉल्व करी थी। उससे पहले लेक्चर में भी हमने एक प्रॉब्लम करा था। अब बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझको ईमेल करिए, मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताऊंगा, बोर्ड पर भी समझाऊंगा।
बिना किसी हिचक के, बिना किसी उसके जो है आप मेरे से इसको पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।